ਅੱਬੂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੰਮੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨੋ ਖਵਾਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਭੈਣ। ਇੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕੱਟਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਕੱਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਕਰਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए है। नाज़रीन, मानावाला में जो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ वो आपने सुना भी और देखा भी, किस कदर यहाँ पर जुल्म और सितम की दास्तान रकम की गई। मानावाला में कोई भी ऐसी आंख नहीं जो अश्कबार ना हुई हो। ये वो बहनें हैं जिनकी बहन के साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई। ये अपनी बहन की मैयत उठाती हैं और उठा के रोड के ऊपर ले जाती हैं, रोड ब्लॉक कर देती हैं कि हम जब तक हमारे सांसों में सांसें चल रही हैं हम अपनी बहन को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। ये मीडिया के सामने भी इसीलिए आई हुई हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से भी अपील करती हैं कि शायद उन तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और हमारी बहन को इंसाफ मिले, क्योंकि जिस तरह का जुल्म इकरा के साथ हुआ, हम मुसलमान किसी जानवर के साथ भी ऐसा करने से 100 बार सोचते हैं। ये भी उसकी छोटी बहन, एक कज़न है जिसकी बड़ी अटैचमेंट थी, अभी बड़ी मुश्किल से स्टेबल हुई हैं। ये बार बार यहाँ पे बेहोश हो रही थी, उठती थी, इकरा का नाम लेती और फिर बेहोश हो जाती थी। मेरी बहन भैनों तो वध के भैनों की सहेली कोई नहीं होंदी, कोई दोस्त नहीं होंदा। इकरा चली गई इस दुनिया तो, की कहना चाहोगे तुसी? बहुत जुल्म किया इकरा नाल, काफिरों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। मेरी भैन अल्लाह पाक तुहानू सबर दे। मरियम नवाज़ अगे मेरी अपील है, सानू इंसाफ चाहिए। अच्छा मेरी भैन, इकरा ते नाल तुहाडी बड़ी अटैचमेंट है, पता लग्या घर चों तुहाडी सहेली सी, तुहाडी भैन भी सी। की गल को गलबात नहीं की कि मेरे नाल की मेरे ससुराली कोई जुल्म करते? कोई गलबात नहीं की, कोई गलबात नहीं की। हां बहुत बहुत जुल्म कीते। इकरा दे इंसाफ चाहिए, मरियम नवाज़ अगे अपील करते हैं, सानू इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, इस घर का कोई भी फर्द आप देखेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात उनके लबों के ऊपर है कि बस हमें इंसाफ चाहिए, जो पाकिस्तानी अवाम का बुनियादी हक है। और ये यहाँ पर अपील कर रहे हैं, रो रो के गिड़गिड़ा कर, हाथ बांध बांध कर भी आप लोगों से इंसाफ की अपील करते हैं। बाकी भी जो दो बहनें हैं जिन्होंने अपनी बहन की मैयत को रोड के ऊपर ले गई थी, मेरी बहन कैसे आप लोगों को इतला मिलती है कि हमारी बहन के साथ इस तरह इतना बड़ा जुल्म हो चुका है? भाई 4 वजे कॉल आई है। हाँ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਇਕਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਇੱਥੇ। ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਬੂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੰਮੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨੋ ਖਵਾਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਜ਼ੁਹੇਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਸਾਮਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕਰਾ ਨੇ ਐਸੀ ਵੈਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ।
ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਕਰਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਇਕਰਾ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਕਰਾ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ? मैं अपने ससुराल से मैंने सुबह फोन किया सी भाई ने कि इकरा दे ससुराल वाले ने इकरा बहुत ज़्यादा बेरहमी नाल मारिया है। मैनू उस टाइम कुछ समझ नहीं सी आ रही, उस टाइम मेरी इन्नी कंडीशन खराब हो गई सी, मैनू अपने आप पता ही नहीं चल रहा मैनू होन की दिया, इन्नी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई सी। जिस टाइम मैं हॉस्पिटल च पहुंची, जो मैं अपनी भैन देखी है, मैनू अपनी अक्खां ते यकीन नहीं सी हो रहा साडी भैन, मैं पहचानी ही नहीं है कि साडी ही भैन। इन्ना बेरहमी नाल उन्हां काफरां ने मारिया, इन्ने बेरहमी मारे, उन्होंने इन्ने जुल्म किए, और अखा दे सूए मारे, और सिर दे सुराख काटते, तेन और मगज काटता उन्होंने, इन्ने बेरहमी ना मारे। इन्ना ते जानवरों से भी नहीं सलूक किया जाता बेरहमी ना, जिस तरह उन्होंने एक औरत ते कीता है। अच्छा मेरी भैन, तुसी भी शादीशुदा हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕਰਾ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? भाई उस होश च आंदी तो सानू कुछ दसदी, असी सिर्फ ओरी होश का इंतजार कर रहे सी। इकरा ने ऐसी केड़ी गलती कर दी है, कदी उन्हें वो औरत सी जिन्हें कदी आन के अपने ससुराल वाले दी गीला वगैरह नहीं सी कीता है कि मेरे ससुराल वाले बुरे ने अच्छे ने, जिस तरह से उन्हें ऐहो ही कहती सी मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे ने। इस तरह औरत अच्छाई अपने ससुराल वाले दी करे, फिर उन्होंने हक नहीं है इस तरह उन्होंने जुल्म करना, पर उन्होंने जुल्म की हद पार कर दी। उस बच्ची से इन्ना जुल्म किया गया कि जेड़ा इंसान देखता होया ही कहता कि बच्ची ना बहुत जुल्म होया। सानू 10 दिन ताड़ी बच्ची ठीक नहीं है, इहदी यह गलती है, असीं उन्हें पुछ लैंदे या असीं अपने घर लैंदे, पर उन्होंने साडे कोई ऐसा डिवोर्स दे देंदे, अगर नहीं सुने समझ आंदा तो छड्ड दे, लेकिन मार दे तो ना। हाँ जी, डिवोर्स दे देंदे, छड्ड देंदे। हाँ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਂਦਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮਸੈਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। एक और पेट च बच्चा, एक मां नूं मारिया गया, वो भी बड़े बेरहमी नाल मारिया गया कि देखने के लायक बच्ची नहीं सी उन्होंने। बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया गया। मैं यही कहना चाहती हाँ, सिर्फ साड़ी बच्ची नूं इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ दो। एक असीं मरियम नवाज नूं कह रहे हैं सानू इंसाफ चाहिए, दूसरा अपने अल्लाह ताला दे अगे करदे हां कि अल्लाह ताला साडे अपने अल्लाह ताला ते उम्मीद रखी, दूसरी उम्मीद असीं मरियम नवाज से रखिए कि मरियम नवाज सानू इंसाफ दिलाएगी इंशाअल्लाह। काश कि यही बात मोहतरमा मरियम साहिबा आपके दिल में घर कर जाए कि पहली उम्मीद तो हमारी अल्लाह के ऊपर है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और दूसरी उम्मीद हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आप इंसाफ दिला के इस ख़ानदान की दादरसी कर सकती हैं। और नाज़रीन, यही बात जो मेरी बहन ने की है कि अगर उन लोगों को कोई ऐसी हरकत नज़र आ गई, वो शिकायत करते, डिवोर्स दे देते, छोड़ देते, मगर उन जालिमों को, दरिंदों को, उस मासूम बच्ची को मारने का अख्तियार किसने दिया था? एक एक नहीं, दो जानें ली गई, और इस कदर तशद्दुद किया गया, इस कदर जुल्म किया गया। उस घर में इतना चीखती चिल्लाती होगी इकरा, मगर वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ उस घर में थे तो सिर्फ और सिर्फ दरिंदे थे जो जुल्म कर भी रहे थे और जुल्म को देख भी रहे थे। काश कि इस माँ की, इन बहनों की कानों में उस इकरा की आवाज़ पड़ जाती तो ये ना आओ देखती ना ताओ देखती, उसी वक्त उनके घर में जाके कम से कम अपनी बहन को बचा लेती। मगर अफसोस वक्त गुजर चुका था। इनको जब इतला दी गई तो इकरा हॉस्पिटल के बेड में पड़ी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। जब इनको वो देखते हैं तो वो यहाँ से भाग जाते हैं। इस घर में इकरा पली बड़ी, ये घर देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो चूल्हा है जहाँ पर बैठ के इकरा ने खाना बनाया होगा। ये गुर्बत की एक तस्वीर भी वाज़ह यहाँ पे नज़र कर रहा है। और ये बैठा हुआ इकरा का वालिद, इसने न जाने कैसे किस किस शख्स से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से उधार रकम की होगी, कितनी मेहनत की होगी,
तब जाके अपनी बेटी के हाथ पीले किए और अपने घर से रुखसत किया। दुनिया की तमाम आसाइशें अपनी बेटी को दी, मगर क्या पता था इस बाप को कि मैं अपनी बेटी को इस घर से रुखसत कर रहा हूँ, जिस घर में जाएगी वो जालिम इसको इसकी ज़िंदगी से ही रुखसत कर देंगे। ये दास्तान थी इकरा के साथ जो रकम की गई। इसके लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो खून के आंसू रो रहा है और इनके दुख दर्द में वो बराबर का शरीक है। अल्लाह करे कि जो हमारे मुल्क के बाख्तियार लोग हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है कि उन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा के इस घर की इन घर वालों की दाद रसी कर सकते हैं, मगर क्या किया जाए, वो उन दोज़ख के फरिश्तों की तरह हैं जो ना बोलते हैं ना सुनते हैं। ऐसा ही हमारे हुक्मरानों के हालात आजकल बन चुके हैं। अल्लाह करे कि यहाँ पर हज़रत उमर जैसा हुक्मरान आए और वो भी दावा करे कि अगर दरिया दजला के किनारे बकरी भी भूखी मर गई तो उसकी पूछ जो उमर से होगी। इतने लोग बेकसूर मर रहे हैं, इतनी इकरा न जाने कितनी ज़्यादा इस पाकिस्तान में ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो रही हैं। पता नहीं इन हमारे हुक्मरानों के कानों में कोई ऐसी आवाज़ क्यों नहीं पड़ती, क्यों ऐसा कोई कानून पास नहीं करते कि ऐसे जो जालिम हैं उनको इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि देखने वाले दूर दूर को जो है वो डर जाएं। जैसा कि आजकल CCD का भूत मुल्ज़मान के और मुजरमों के बदमाशों के सर पे सवार है, ऐसा ही कानून कोई पास किया जाए, ऐसी ही कोई फोर्स तैयार की जाए जिसका अवाम पे और भी ज़्यादा बोझ काफ़ी ज़्यादा डाले जा रहे हैं, ये टैक्स भी अवाम के ऊपर डाल दें, मगर मेरी बहन बेटियां जो हैं वो किसी के जुल्म का शिकार ना हो सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जस्टिस फॉर इकरा ट्रेंड बना के चलाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।